Good afternoon, students. Welcome back once again. Today we are going to talk about one of the important experiment as far as your board exam is concerned, and the name of the experiment that would be chemical kinetics. That the page number it is on 13, page number 13. I will tell to my friend to focus on the manual part, so you can see the page number 13. And the aim of the experiment is to study the effect of concentration of a rate of reaction between the sodium thiosulfate and HCl. So we are going to talk about basically key, if I change the concentration, what happens to the rate of the reaction. Simple है कि as concentration increases, the rate of reaction will also increase, which means that less time would be needed to complete the reaction. So let me introduce first what are the apparatus that is needed for this experiment. So if you can focus over here, that we need these are the conical flask, a burette, and then a stopwatch to record the time, and then plain paper or white tiles, it is also okay, no problem. So how to do the experiment? This is very easy. Chemicals, what are the chemicals are needed? That sodium thiosulfate and then HCl and water, not distilled water, okay? We are using here water. So basically I will tell to my friend to focus over here. These are the requirements. We have here four conical flask. The name A, B, C, D is already written over there. So as you can see in the observation, I will tell my friend to focus on the observation part. So you can see the conical flask, we have four A, B, C. These are the four conical flasks, and these are the volume of sodium thiosulfate that we need to put in the conical flask, this much amount. And then we're going to put the H2O 28, 18, 8 and no H2O in the last one. And at the end, when we are supposed to take the reading, then only I am going to put what? HCl. बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि आपकी पहली रीडिंग हो गई, फिर उसके बाद दूसरे में HCl पुट करोगे, फिर तीसरे में करोगे, ऐसे मतलब जितनी बार आप A, B, C की रीडिंग ले रहे हो, A की रीडिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप दूसरे में HCl पुट करोगे, फिर आप C के अंदर HCl पुट करोगे, उसकी रीडिंग ख़त्म हो गई, फिर आप D के अंदर HCl पुट करोगे. तो इस तरह से आपको HCl पुट करना और उसकी टाइम देखना है कि कब डिसअपियर हो रहा है. क्या डिसअपियर हो रहा है ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे क्रॉस मार्क जो है ना, क्रॉस मार्क आपका डिसअपियर होगा. डिसअपियर होगा मतलब आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, वो टर्बिड हो जाएगा पूरा सोल्यूशन. ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कैसे कितना समय ले रहा है वो रिएक्शन कंप्लीट होने में, कम समय ले रहा है या ज़्यादा समय ले रहा है. एज आई सेड इन द बिगिनिंग ओनली कि इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा एंड लेस टाइम वुड बी टेकन. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ए वाला. आपको ए का सेट का मैं पूरा बता देता हूँ, सेम वे दैट बी, सी और डी करना है अपने को. सो व्हाट आई एम डूइंग, तो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आपको, अब मैं आपको एक पहला सेट शो करूँगा कि कैसे अपने को जो है पहली रीडिंग लेनी है. इनफैक्ट मैं सभी बताऊँगा, बट पहले के अंदर आपको कैसे आपको वॉल्यूम्स, जो भी कुछ आपके केमिकल्स की वॉल्यूम बोली है, क्या क्या पुट करना और कैसे पुट करना मैं उसको बताऊँगा. आई विल टेल टू माई फ्रेंड टू फोकस ऑन द ऑब्जर्वेशन पार्ट. अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे पहले सेट के अंदर, ए सेट के अंदर, तो यहाँ पे आपको 20 ml सोडियम थायोसल्फेट लेना है, 28 ml आपको H2O, और जब आप रीडिंग लेने जाओगे तब आपको HCl का ऐड करना है. प्लीज़ टेक केयर कि व्हेन यू आर टेकिंग द रीडिंग देन ओनली यू आर गोइंग टू पुट व्हाट HCl. ठीक है, this sodium thiosulfate and H2O you can put it initially also, so you can put and keep it as it is, but whenever you are, whatever is the set of reading you want to take,
you will be taking only after putting the HCl. तो एक सिंपल सी बात है, HCl आपको लास्ट में डालना है, लास्ट में, ठीक है। एक रीडिंग कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद दूसरे में डालोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने पहला सेट कैसे बनाना है मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैंने ये मेरा कोनिकल फ्लास्क है। अब उसके अंदर आई एम टेकिंग 20 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट ये मेरे पास है ऑलरेडी, सब apparatus whatever it is needed for the experiment it would be given to you. So I am taking 20 ml of sodium thiosulfate. This is my beaker. This is my beaker which is having what? Sodium thiosulfate. Okay, and this is my measuring cylinder. So I am taking 20 ml. You can see 20 ml. ठीक है। So I have taken 20 ml of sodium thiosulfate. Now I am putting into this conical flask. Fine. After this, what I will do, I have to put 28 ml of H2O. So what I am doing, I am taking the H2O. This is the H2O I have taken, the normal H2O tap water, and कितना है 28 ml. So this is 25 and 28, right? See, 28. Okay, चलिए. So now I am putting into this. ठीक है. Now the same way I have put it over here. Now same way I have did the preparation for B also, set B, same way for C also, and same way for D also. Only that in the D there is a no H2O. There is a no H2O. Directly I have taken what? 50 ml of sodium thiosulfate, and whenever I will be taking the reading, I will be putting the 2 ml of HCl. Now my all four set is ready. Only the HCl part is not there in this set. ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं पहले A लूँगा और A के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं A लूँगा और A के अंदर मैं HCl डालूँगा, और HCl डालने के बाद मैं बता रहा हूँ पहले, यहाँ पर तुरंत रख दूँगा स्टाइल्स के ऊपर, या आप इसके ऊपर भी रख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। यहाँ पे क्रॉस निशान आपको दिख रहा होगा, और जैसे ही मैंने HCl डाला उसी समय मैं, मेरी जो है स्टॉप वॉच रहेगी, उसको मैं एक्टिवेट करूँगा, और मुझे तब तक जो है देखना है कि जब तक ऊपर से, यहाँ पे मेरी फिंगर दिख रही है कि नहीं, देखो फिंगर से भी आपको देखो क्रॉस मार्क अपीयर हो रहा है, रेड वो ब्लैक वाला। तो वो जब तक पूरा टर्बिड नहीं हो जाता, जब तक मैं नहीं देख पाता वहाँ ऊपर से, तब तक मैं क्या करूँगा, मुझे इस स्टॉप वॉच को वैसे का वैसा ही रखना है, मतलब टाइम रिकॉर्ड करना है। Once I am unable to see the cross mark, or cross mark is disappearing, I am not able to see. The moment it is disappeared, I have to stop the watch, and then I have to record the time, and that time you are going to write over here time required to become a cross mark invisible. ठीक है, फिर उसका आप 1/t लोगे, and then after this you will be drawing the graph. So the important part is that कि HCl, the moment you put the HCl into this all four set of the mixture, you have to start the stopwatch and have to record the time. So I am starting with the first one, same way I will be doing for the second one also, third one also, and fourth one also. So let's start with the first one. 1 minute. So the HCl already it will be prepared to you, no need for preparation, it will be given to you. So I am using the pipette, and how much? 2 ml I need. 2 ml I need. So what I can do, instead of like taking with this help of this pipette, I can fill it in the burette also. That would be better. So what I am doing, I am just so I will fill this what we can say HCl. ठीक है, I will fill the HCl in this
ब्यूरेट एंड एक एक सेट के लिए मैं 2 ml जो है लूँगा और टाइम रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, जब तक मेरा वो क्रॉस मार्क डिसअपियर नहीं होता। ये जो HCl था और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्यूरेट के अंदर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई नीड ओनली 8 ml का HCl मुझे चाहिए और कुछ नहीं। फिर भी मैं 0 तक इसको लेके आऊँगा। 1 मिनट। ठीक है, चलो। सो ये मेरा पार्ट ख़त्म हो गया। अब मैं सब कुछ, नाउ एवरीथिंग इज़ रेडी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हर एक सेट के अंदर HCl डालना है। तो HCl आपको एक एक करके डालना है, एक ही बार आप सब में नहीं डालोगे। एक की रीडिंग ख़त्म हो गई, फिर आप क्या करोगे, दूसरे के अंदर HCl डालोगे, फिर तीसरे के अंदर, फिर चौथे के अंदर, ऐसे ABCD के अंदर डालना है। तो मैं सबसे पहले A वाला पार्ट उठाता हूँ और इसके अंदर आपको पता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थायोसल्फेट है जो 20 ml है और 28 ml मैंने क्या किया है, पानी डाला है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ml इसके अंदर क्या करूँगा, HCl डालूँगा। तो जैसे ही मैंने HCl डाला, ये देखिए मेरी स्टॉप वॉच यहाँ पे रेडी है। मुझे क्या करना है, एक्टिव करना है और तुरंत ये क्या होगा, टाइम मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर भी ज़रा मैं बोलूँगा, ये देखिए मैंने डालना चालू कर दिया। यू कैन फोकस ओवर हियर ऑल्सो। तो मैंने, ये देखिए मेरी स्टॉप वॉच चालू हो गई और 2 ml देखिए 2 ml पड़ गया है। अब मैं इसको ऊपर हटा के कहाँ पे रख दूँगा, तुरंत यहाँ पर। और थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसको स्टर करूँगा, ठीक है। नाम स्टरिंग। अभी भी देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है, स्टिल यू कैन सी, आपको दिख रहा है, ठीक है। वो वेट कर रहना है, वेट करिए। और जब तक ये टर्बिड नहीं हो जाता, मतलब इनविजिबल नहीं हो जाता, तब तक आपको स्टॉप वॉच को जो है चालू रखना है, ठीक है। ओके, सो स्टिल सो नाउ यू कैन सी, थोड़ा सा ये टर्बिडिटी अब इसके अंदर जो है आ रही है, धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे टर्बिडिटी आ रही है। क्योंकि ये इतना समय क्यों ले रहा है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत कम है थायोसल्फेट की, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है 28 ml डाला गया है, इसीलिए इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। जबकि डी वाला जो है आपको बहुत जल्दी ही जो है वो क्रॉस मार्क जो है डिसअपियर हो जाएगा, जो ब्लैक मार्क है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा टर्बिड चालू हो रहा है, टर्बिड उतना क्लियर नहीं है जैसे पहले था आपका, ठीक है। तो ये देखिए अब धीरे धीरे ये टर्बिड होने लगा है। अब देखिए थोड़ा सा जो है आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो, कैन सी, अब ठीक है, अभी भी थोड़ा सा है। तो जस्ट अपने को, यस, सो यू डोंट बॉदर अबाउट द टाइम, जस्ट आप देखिए कि कब डिसअपियर हो रहा है। तो आई विल टेल टू माई फ्रेंड टू फोकस मोर ऑन दिस पार्ट, ठीक है। चलो, नाउ आई गेस थोड़ा सा अब दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मार्क को देखने के लिए। नाउ आई विल स्टॉप, ठीक है, आई विल स्टॉप। सी, आई कैन नॉट सी नाउ, आई कैन नॉट सी नाउ, यस। सो नाउ दिस टाइम आई नीड टू नोट डाउन इन द फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीडिंग आपकी रहेगी। ये ऑलरेडी रीडिंग्स वगैरह आपको दी गई हैं, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ वी शुड प्रोसीड विद द एक्सपेरिमेंट, द वे इट शुड बी डन। ये पहली रीडिंग हमारी 2.47 जो है इसको हम 1/T ले लेंगे और ठीक है। सो दिस इज़ डन। ठीक उसी तरह आपको क्या करना है,
नाउ आई एम कीपिंग दिस असाइड. नाउ द सेम क्या कर रहा हूँ मैं कि फिर से क्या करूँगा 2 ml इसके अंदर डाला हूँ. मैं इसको डाल रहा हूँ 2 ml HCl. तो ये देखिए 2 पे आ गया. अब मुझे कहाँ तक लेके आना है 4 पे. तो मैं अपना स्टॉप वॉच चालू करूँगा. ठीक है, रीसेट. ये टाइम मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है. रीसेट मैंने कर लिया इसको. ये रेडी रखिए. और ये 4 पे जैसे आता है तुरंत मुझे, ठीक है, ऑलरेडी मेरी ये चालू है. ये देखिए रेडी. और मैं इसको तुरंत हटा के थोड़ा सा स्टर कर लूँगा ऐसे और इसके ऊपर रख दूँगा. तो सेम ऑब्जर्वेशन मुझे करना है. सेम सबके लिए सेम ऐसा ही रहेगा. ठीक है, तो लेट्स सी कितना टाइम ये लेता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. ठीक है, तो अभी से देखो थोड़ा सा टर्मिक चालू हो गया है. ठीक है, नाउ इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दिस, तो थोड़ा सा दिख रहा है बट बहुत फोकस करना पड़ रहा है. ठीक है, सो इफ़ यू कैन सी धीरे 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 ये अब डिसअपियर हो जाएगा. और ये देखिए अब मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऊपर से. हाँ, ऊपर से देखना है, ये नहीं, ये पार्ट हमको नहीं देखना है, ये ऊपर से यहाँ से. ठीक है, नाउ आई एम स्टॉपिंग. नाउ यू कैन सी 1.53 आपको आ रहा है. ठीक है, तो पहले हमको 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, अब टाइम कम लग रहा है. क्यों टाइम कम लग रहा है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम क्या किए इसकी बढ़ा दिए हैं. ठीक है, सो इसको ठीक फिर से हम क्या करेंगे, वहीं पे रख के फिर हम नेक्स्ट वाली ले लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, सेम वही 2 ml. ठीक है, इसको रीसेट कर लेते हैं. ये मैं आई विल टेल टू माई फ्रेंड टू फोकस ऑन दिस ब्यूरेट का पार्ट पे. ठीक है, चलो 2 ml मैंने डाल लिया. अब इसको स्टर कर दूंगा और देखिए ये एक्टिवेट हो गया. Now you can see, now I'm not able to see the cross mark, so I have to stop my stopwatch. तो ये देखिए इससे भी कम समय लगा हमको 1.25. इवन इसके पहले वाला जो था बी वाला था, दैट वाज टेकिंग 1.53 समथिंग लगा था. ये 1.25. आई एम नॉट राइटिंग द रीडिंग बिकॉज रीडिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग द PDF वो सब आपको दिया जाएगा. तो आई एम जस्ट कीपिंग ओवर हियर द C वाला इसकी जगह पे. अब मैं D वाले को उठा रहा हूँ और सेम प्रोसीजर अप्लाई करूँगा, मतलब HCl डालूँगा लास्ट को. इसको रीसेट कर दे रहा हूँ. 2 ml अभी 6 to क्या हो जाएगा 8. ठीक है, मैंने चालू कर दिया है. ये देखिए स्टिल यू कैन सी थोड़ा सा दिख रहा है बट ये जल्दी ही डिसअपियर होगा क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है. तो एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, ये याद रखिएगा. नाउ अभी देखिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू डिसअपियर के स्टेज पे है. तो आई हैव टू स्टॉप दिस स्टॉप वॉच. और इसमें तो बहुत ही ऑलमोस्ट 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 1 मिनट ही लगा. 1.09 आ रहा है, तो ये 1 मिनट लगा. तो इससे हम बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमने ये 2.5 मिनट से चालू किया था और धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम हमारा क्या हो गया, कम लगते गया. इससे ये पता चलता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन थायोसल्फेट की बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन के अंदर आपने इसको डाइल्यूट किया था, H2O भी ऐड किया था. सो आपका जो ग्राफ रहेगा वो आप प्रॉपर
ये ऑलरेडी आपको PDF में दिया जाएगा। आप 1/t लोगे इस रीडिंग का, और फिर उसके बाद आपको ग्राफ जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। 1/t अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे एकदम ऊपर की ओर जाती हुई मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओरिजिन से पास आपका, ठीक है, ऐसे आपको करना है। और मे भी आपको 4 पॉइंट्स है, तो हो सकता है कि ये एक पॉइंट इधर उधर नहीं आ रहे होंगे, तो ट्राई टू टेक द मैक्सिमम पॉइंट, एंड इट इज़ देयर इन द जो है PDF में, सो नॉट टू बॉदर अबाउट मच, बट यू शुड नो हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। आई रिपीट वंस अगेन व्हाट आई डिड, आई जस्ट टुक दी apparatus जो चाहिए हमको एक एक्सपेरिमेंट के लिए। हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन पानी है, सोडियम थायोसल्फेट इज देयर, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। और क्या है, ये हमारे सिलेंडर्स हैं। तो हमने ये 4 कॉनिकल फ्लास्क थे, सब में जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल में जैसे दिया है उस हिसाब से हमने वॉल्यूम्स किया, वॉल्यूम ऐड कर लिया उसके अंदर, लेकिन HCl को हमने नहीं डाला। HCl को हमने किसके अंदर, इस ब्यूरेट के अंदर फिल कर दिया, ठीक है। और फिर एक एक सेट हमने लिया, ये वाला सेट लिया, HCl डाला, टाइम चालू किया स्टॉप वॉच, और देखा कि कब डिसअपियर हो रहा है। सेम वे फॉर B ऑल्सो, C ऑल्सो एंड D ऑल्सो। टाइम हमने रिकॉर्ड किया, 1/t हमने देखा, और फिर ग्राफ बनाया। तो इस हिसाब से ये आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। और याद रखिए, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। ओनली ऑब्जर्वेशन वुड बी योर की फैक्टर। और जैसे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया है कितनी क्या लेना है, कितना सोडियम थायोसल्फेट लेना है, कितना HCl लेना है, ठीक उसी तरह से आपको पहले जो है उसके अंदर हर एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, हर एक सेट के अंदर डाल दीजिए। प्रिकॉशन यही लेना है कि जब आप HCl पुट कर रहे हो 2 ml, उसी समय आप क्या करोगे कि स्टॉप वॉच आप चालू रखोगे, और एक रीडिंग ख़त्म होने के बाद ही HCl एट द एंड डालना है, जब आप रीडिंग लेने जाओगे हर एक सेट के लिए। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो कॉन्सेंट्रेट, इसको एक बार देख लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, डेफिनेटली इट विल बी रिजॉल्व। यू कैन आस्क योर क्वेरीज, कैन राइट in the comment box also if you are having any queries. So thank you so much, and concentrate on the experiment.